السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. کل ہم نے جو پڑھا تھا أشهد أن لا إله إلا الله وحده، تو اس میں جو ہے لا الہ، اس کا ترجمہ کریں کوئی معبود برحق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ لا لائے نفی جنس کا ہے، الہ اس کا اسم ہے، تو یہاں اس کی جو خبر ہے بحق وہ محذوف ہوگی۔ لا الہ، لا الہ بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرا جو ہے نا، کل کی ریکارڈنگ میں، کل کے سبق میں آ، وہ لفظ مجھ سے غلطی ہوئی، تسامح ہوا۔ لفظ بولنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت عبودیت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کا درجہ لوگ دے دیتے ہیں، تو اس پر لفظ اللہ بولا گیا کہ اللہ کو خالق کا درجہ دے دیتے ہیں، تو اس کی بھی ساتھ اصلاح کر لیں۔ آپ کے بھائی ابو عبد الرحمن نے اصلاح کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ جی ہم آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ جی المسألة الواسطية في العقيدة اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة۔ بعض نسخوں میں ہے اما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، تو اما بعد جو ہے آپ کے پاس اگر نسخہ اس میں اما بعد ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و حمد بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان پر صلات وغیرہ بھیجا گیا، اس ساری تفصیل کے بعد، تو اما بعد کا جو لفظ ہے یہ اصل مقصود شروع کرنے سے پہلے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو اعتقاد الفرقۃ الناجیہ، اعتقاد عقیدہ، عقیدے پر ہم بات کر چکے تھے کہ عقیدہ جو ہے وہ عقدہ سے ہے، اور عقدہ گرہ کو کہتے ہیں۔ عقدہ جب لگ جائے، گرہ لگ جائے تو مضبوطی آ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات وغیرہ ہیں ان کے متعلق اپنے دل میں پختہ نظریہ بنا لینا، یہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ تو الفرقۃ الناجیہ، الفرقہ یہ جماعت کے معنی میں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ جو ہیں ان کا یہاں بیان کیا گیا الفرقۃ الناجیۃ المنصورہ۔ ایک الفرقہ کہا گیا جو میں نے ذکر کیا کہ جماعت کے معنی میں ہے، اور دوسری بات یہاں ذکر کیا گیا الناجیہ، نجات پانے والا، کیونکہ بہت زیادہ فرق ہوں گے لیکن نجات پانے والا صرف ایک ہوگا۔ پھر المنصورہ ذکر کیا گیا، المنصورہ کا لفظ کہ جس کی مدد کی گئی ہے۔ اعتقاد عقیدہ الفرقۃ الناجیہ، ایسے فرقے کا، ایسی جماعت کا، الناجیہ جو نجات پانے والی ہے، المنصورہ جس کی مدد کی گئی ہے، الی قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک۔ اہل سنت والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ یہ ایسا گروہ ہے جو نجات پانے والا ہے اور قیامت تک اس کی مدد کی گئی ہے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے وہ آگے سارا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں ایک ایک لفظ پر ذرا دیکھیں۔ الفرقہ سے میں نے ذکر کیا، مراد کیا ہے؟ جماعت ہے۔ اور پھر لفظ ہے الناجیہ، نجات پانے والا۔ یہ لفظ جو ہیں یہ سارے احادیث مبارکہ سے ہی ماخوذ ہیں۔ یہ اس وقت آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 3993 ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل، بنو اسرائیل جو ہیں افترقت علی 71 فرقہ، ان کے 71 فرقے ہوئے تھے، 71 فرقوں میں وہ بٹ گئے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى 72 فرقہ، اور میری امت جو ہے وہ 72 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا واحدۃ، سوائے ایک کے، وہی الجماعہ، اور وہ الجماعہ ہے۔ یہی الجماعہ مراد یہاں جس پر لفظ الفرقہ کا بولا گیا۔ تو چونکہ یہ نجات پانے والا ہے، اس لیے یعنی نجات پانے والا ایک ہی ہے، اس لیے اس نجات پانے الا واحدہ سے
یہ अन्नाजिया का लफ्ज जो है माखूद है। और दूसरा यहाँ मौलिफ ने जिक्र किया अल मंसूरा, जिसकी मदद की गई है इला क़ियाम अस्साअ। तो अल मंसूरा का जो लफ्ज है ये भी हदीस मुबारक से माखूद है। ये आपके सामने जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है 2192 नंबर पर। ये कुर्रा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा फसद अहलु शाम फला खैर फीकुम। अहले शाम जब वहाँ फसाद आए जो तुम में कोई खैर नहीं, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती मंसूरीना, हमेशा रहेगी एक जमात मेरी उम्मत उम्मत में से मंसूरीन, जिनकी मदद की गई है। ला यदुर्रुहुम मन खज़लहुम हत्ता तक़ूम अस्साअ, क़यामत के कायम होने तक उनकी मदद की है, और जो उनसे जुदा होगा अलग होगा वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो ये जो मंसूरीन का लफ्ज है, और फिर यहाँ चूंकि मौलिफ ने लफ्ज बोला है अल मंसूरा, तो अल मंसूरा का लफ्ज की भी हदीस के अंदर मौजूद है। ये इस वक्त आपके सामने किताब है इमाम बैहकी की, किताब का नाम है असुनन अल कुबरा। तो उसका हदीस नंबर आपके सामने है 18,658 नंबर पर। उसमें अल्फाज क्या है, वला तजालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक्की मंसूरा हत्ता याती अमरुल्लाह। तो ये जो लफ्ज है मंसूरीन या मंसूरा, यहाँ से इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने अल मंसूरा का जो लफ्ज है वो अखज किया। सुभान अल्लाह, किस कदर हमारे असलाफ जो हैं उन्होंने तमस्सुक इख्तियार किया है किताब और सुन्नत के साथ। अच्छा, फिर इमाम ने फरमाया कि ये इला क़याम अस्साअ, ये क़यामत तक होगा। तो इसको इसका मफहूमी तर्जमा कर लें, इला क़याम अस्साअ का इला क़ुर्ब क़याम अस्साअ, क़यामत कायम होने के कुर्ब, जो है यानी करीब, क़यामत कायम होने के करीब तक ये जो फिरका है वो बाकी रहेगा। तो अल्लाह अकबर कबीरा। असल में ना एक रिवायत है ये सही मुस्लिम में 1924 नंबर पर ये रिवायत है। इसमें अल्फाज क्या है कि ला तक़ूमु अस्साअतु इल्ला अला शिरारिल खल्क, कयामत कायम नहीं होगी मगर बदतरीन लोगों पर। तो ये ज्यादा जो बदतरीन बेवकूफ दीन बेजार लोग होंगे, कयामत उन पर कायम होगी। तो फिर जो कहा गया कि इसकी मदद की गई है कयामत तक, तो वो साथ सही मुस्लिम की एक और रिवायत भी रख लें। ये सही मुस्लिम की 117 नंबर रिवायत है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यबअथु रीहन, अल्लाह ताला एक हवा भेजेगा, मिनल यमन, यमन की तरफ से, अल यनु मिनल हरीर, जो रेशम से ज्यादा नरम और मुलायम होगी। ला तदउ अहदन, वो किसी एक को नहीं छोड़ेगी, फी कल्बी ही, जिसके दिल में, अबू अलकमा रावी हैं उन्होंने मिसकालु हब्बा का लफ्ज बोला, और अब्दुल अजीज रावी ने मिसकालु जर्रा का लफ्ज बोला। तो दाना जर्रा के बराबर। यहाँ जो इमाम साहब के उस्ताद हैं ना, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, वो हैं अहमद बिन अब्दा ज़ब्बी। यहाँ इमाम के उस्ताद अहमद के उस्ताद आगे दो हैं, एक अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद हैं और दूसरे अबू अलकमा फरवी हैं। तो दो उस्ताद दोनों ने अलग अलग लफ्ज बोला। अबू अलकमा ने मिसकालु हब्बा का लफ्ज बोला, जबकि अब्दुल अजीज फरवी ने मिसकालु जर्रा का जो लफ्ज है वो बोला, अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद ने। तो जिसके दिल में ईमान होगा जर्रा बराबर या एक दाने बराबर, इल्ला कबदत हो, मगर उसको ये जो हवा है वो कब्ज कर देगी, फौत कर देगी। क्या मतलब? और बाद इसके तुरुक आप मजीद सामने रखें तो मालूम होता है कि आदमी किसी गार के अंदर हो, दाएं बाएं कहीं भी हो, उसके दिल के अंदर ईमान मौजूद है ना, तो ये हवा जो चलेगी बड़ी खुशगवार, ये सारे अहले ईमान को फौत कर लेगी। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला अपने खालिस खालिस नेक नेक बंदों को उठा लेगा, बाद में फिर बदतरीन लोगों पर क्या होगी, कयामत कायम होगी। तो मौलिफ रहमतुल्लाह ने जो कहा है ना कि इला क़याम इस्सा, इसका मतलब आपने ये समझना है कि कयामत के क़याम के करीब करीब तक ये रहेगा। अच्छा, यहाँ एक और बात ये है कि वैसे जो अल फिरका है, अल जमाआ है, जी, ये लफज समझ ही आती है कि ज्यादा लोगों पर बोले जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ बाद लोग, ये जमहूरियत से मुतासिर जो इस तरह के लोग होते हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं कि जमात हक्का वो होती है जिसके अंदर तादाद ज्यादा हो।
ये लोग बातें नहीं करते कि तुम बात करते हो, तुम्हारी तादाद कितनी है, तुम तो कम, बहुत कम लोग हो, जबकि फलां जो मसलक है, फलां जो मजहब है, फलां जो फिरका है, उसकी तादाद तुमसे ज्यादा है, तो हक पर तो ज्यादा लोग होते हैं। ये बात गलत है। असल ये देखा जाता है कि किताब और सुन्नत पर कौन है। और ये आप हैरान होंगे, अगर आपने पहले ये रिवायत नहीं देखी तो, ये इमाम इब्नुल क़य्यिम की किताब है, वैसे और भी कई कुतुब के अंदर ये वाक़या मौजूद है, तो मैंने ये आपके सामने रखा। तो आमिर इब्ने मैमून से जो है सवाल किया गया कि आप माशाल्लाह इस इलाके के बड़े फ़कीह आदमी हैं, अतदरी मल जमा, आपको पता है जमा किसको कहते हैं? तो अच्छा, उन्होंने आगे क्या कहा, हाँ, अल जमाअतु, जमात होती है मा वाफक अल हक, जो हक के मुवाफिक हो, व इन कुंता वहदक, खा तू अकेला ही क्यों ना हो। यानी जमात किसको कहते हैं? जो किताब और सुन्नत के मुताबिक हो, हक पर हो, खा वो अकेला बंदा ही क्यों ना हो, अकेला बंदा भी हक पर है। सादा लफ्जों में यूं समझे, आज के इस दौर में अगर पूरी दुनिया के लोग किताब और सुन्नत को छोड़ जाएं, सिर्फ एक बंदा किताब और सुन्नत पर पाबंद रहे, तो वो अकेला बंदा ही जमा होगा, और अहलुस सुन्ना वल जमा का इतलाक उसी पर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया में एक बंदा भी बाकी ना रहे। क्यों? मौलिफ ने यही तो कहा कि क़यामत तक ये जमात रहेगी और इसकी मदद की जाएगी। तो आप देखें कितने फिरके उस वक्त पैदा हो गए थे, और अब तक फिरकों के अंदर इजाफा ही होता जा रहा है। तो ये जितने दीन दुश्मन लोग हैं, कितने फिरके बन गए थे, जहमिया बना, मोतजिला बना, जबरिया बने, कदरिया बने, मुर्जिया बने, वईदिया बने, जी, और खवारिज बने, और रवाफिज बने। आजकल भी आप देख लें, इल्हाद अलग है, और ये कैमोनिस्ट ये अलग है, ये दहरी अलग है, और इस तरह के और कई फिरके ज़ाल्ला हैं। तो ये बड़े फिरक उठे अहले इस्लाम को बर्बाद करने के लिए, इनकी दावत को मुल्तबिस करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ताइफा जो है ये मंसूरा ही है, अब तक अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मदद ही की है। तो इस पूरी किताब में हम इंशाअल्लाह बिफضलिल्लाह ताला अहलुस सुन्ना वल जमाआ जो है, इन्हीं का नजरिया पढ़ने जा रहे हैं। तो अहलुस सुन्ना वल जमाआ ये भी अहादीस से ही लफज दिया गया है, अगरचे वाज़े अल्फाज तो नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो, लेकिन आपने फरमाया कि हक वाले कौन है, मा अना अलैहि वस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से माखूद अहलु सुन्ना हो गया, और जमात से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात जो सहाबा किराम की थी वो हो गई। तो उसी से लफज ले लिया गया अहलु सुन्ना वल जमाआ। अल्लाह अकबर कबीर। अब हम आगे चलते हैं, अहलु सुन्ना वल जमाआ का अकीदा है क्या? अल ईमानु बिल्लाही, अल्लाह पर ईमान, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पर ईमान, व कुतुबिही, और उसकी किताबों पर ईमान, व रुसुलिही, और उसके तमाम रसूलों पर ईमान, वल बाअसी बअदल मौत, और मौत के बाद दोबारा उठने पर बयान, वल ईमानी बिल कदरी, और तकदीर पर ईमान, खैरिही व शर्रिही, वो तकदीर अच्छी हो या बुरी हो, आदमी के हक में जाए, आदमी के खिलाफ जाए, जिस तरह की तकदीर हो उस पर ईमान। तो ये छह अरकान ईमान हैं। ये छह क्या हैं? अरकाने ईमान। इनको उसूलुल ईमान या अरकानुल ईमान कुछ भी कह लिया जाता है। तो सारी किताब में ये छह अरकान ही बयान हुए हैं। तो ईमान का जो मतलब होता है, ये तस्दीक करना होता है, जिस तरह वो कुरान पाक में भी है ना, ओमा अंत बिमुमिन लना, आप हमारी तस्दीक करने वाले नहीं हैं। जी। तो ये तीनों चीजों का नाम है, इसमें पहले हम बात कर चुके हैं। कौलुम बिल लिसान है, यानी जुबान के साथ इकरार, और दूसरे नंबर पर एतिकादुम बिल जिनान, और एतिकादुम बिल कल्ब, दिल का अकीदा, और अमलुम बिल जवारिह, आज़ा के साथ अमल करना, अमल करना भी, और कोई बुरा अमल छोड़ना भी। ये सारे के सारे ईमान में चीजें क्या हैं? शामिल है। तमाम मलाइका पर ईमान, जितने मलाइका हैं उनकी सिफात के मुतालिक जो कुछ बयान कर दिया गया सब पर ईमान। मिसाल के तौर पे सुनन नबी दाऊद की रिवायत है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इजाजत दी गई है कि जो रहमान का अर्श थामे हुए हैं, मैं उनकी कुछ सिफात आपसे जिक्र करूं। फिर आपने फरमाया कि उनकी कान की जो कॉम्पल है, उससे उनके कंधे का जो फासिला है,
ये 700 साल की मुसाफत तक है, इतने बड़े फरिश्ते। जी, मलाइका अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। तो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दिया सूरत तहरीम में, हमारा इस पर ईमान है। तो तमाम मलाइका पर ईमान, और तमाम आसमानी किताबों पर ईमान, और तमाम रसूलों पर ईमान। ये नहीं कि किसी रसूल का इनकार और किसी का इकरार नहीं। और मौत के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान। ये सारी जो अरकान ईमान है ना, इनकी दलील हदीस हदीस जिबरील है। हदीस जिबरील है। आप माशाल्लाह, आप में से अक्सर ने मिशकात तो पढ़ी है, तो मिशकात की पहली हदीस ही हदीस जिबरील है, उसको देख लीजिए एक बार। तो यहाँ किताब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पे ज्यादा जो बात होगी ना, वो अल ईमान बिल्ला पर होगी। बकिया पर भी बात है, लेकिन ज्यादा जो तफसील के साथ मुअल्लिफ ने बात की है, वो ईमान बिल्ला पर की है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम्म। जी, यहाँ से वो मिनल ईमान बिल्लाही, और ईमान बिल्ला से। अब ईमान बिल्ला की यहाँ आगे बयान की जा रही है। किसी ने लिखा है, कोई क्वेश्चन करना है, बोलिए। सर, ये अभी आपने बात की ना, एक वो हदीस का हवाला भी दिया, और जिसमें अहले सुन्नत वल जमात की बात की ना, तो मुझे ये क्लियर करना है कि हदीस तो देखें पढ़ी हुई है ना हमने भी, लेकिन उसमें तो मतलब किसी एक स्पेसिफिक फिरके का नाम नहीं लिया गया। तो ये फिर कैसे हम मतलब इतने ऑथेंटिक वे से कह सकते हैं कि वो फिरका वही अहले सुन्नत वल जमात होगा? आपकी बात जो है ना, अ, उसका एक सादा सा जवाब बस समझें। नाम रख लेने के साथ कुछ नहीं होता। नाम रख लेने के साथ कुछ नहीं होता। असल में ये नाम रखे गए थे इम्तियाज पैदा करने के लिए, क्योंकि उस वक़्त जहमिया का फिरका बड़े उरूज पर था, और कदरिया, जबरिया, जितने मैंने फिरक के पहले भी नाम लिए, ये उरूज पर थे। तो जरूरत इस बात की थी कि एक अलग से नाम हो, ताकि इम्तियाज हो सके, पहचान हो सके कि ये अहलुस सुन्नह वल जमाआ है, जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये अब इतनी लंबी चौड़ी तारीख क्या बयान करनी, सादा सी बात ये कि मामला बढ़ता बढ़ता आगे, जैसे हमारे ये बर्रे सगीर तक पहुंचा, और फिर ये पाकिस्तान भी बन गया। जी, फिर क्या हुआ कि ये जो अहलुस सुन्ना वल जमा का नाम था, ये जो हनफी लोग हैं, बरेलवी लोग, इन्होंने अपने नाम के साथ इसका जो साबका है वो लगा लिया कि हम अहलुस सुन्ना वल जमा हैं, जबकि ये गलती पर है। ये बात हम अला वजिल बसीरत कहते हैं। ये किताबो सुन्नत पर अमल करने का दावा इनका है, लेकिन कई मामलात में ये अल्लाह और उसके रसूल की बात को छोड़ देते हैं, अपने इमाम अबू हनीफा साहब की बात को कबूल कर लेते हैं। ये एक अलग यहाँ बहस है। तो इस पर हमारे उलमा ने अलग से कुतुब भी लिखी हैं, असली अहले सुन्नत कौन। जी, इस पर दो किताबें मेरे ज़हन में आ रही हैं। एक किताब लिखी है प्रोफेसर अब्दुल्ला बहावलपुरी साहब रहमहुल्लाह ने, और एक किताब लिखी है मौलाना अब्दुल कादिर आरिफ हिसारवी साहब रहमहुल्लाह ने। और गालिबन इसी नाम के साथ मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह की भी कोई किताब है। तो ये तीन तरह की किताबें, इसमें बकायदा इस बात को साबित किया गया कि मौजूदा दौर में ये बरेलवियों ने या और लोगों ने जो अपने नाम के साथ लगा लिया कि हम अहलुस सुन्ना वल जमा है, यानी ये खालिसतन अहलुस सुन्ना वल जमा नहीं है। खालिसतन अहलुस सुन्ना वल जमा कौन है? जो खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानते हैं। इसके अलावा जो आइम्मा आगे आए, वो अबू हनीफा साहब हों, इमाम शाफी हों, कोई और हो, तो उनकी जो बात किताब और सुन्नत के मुवाफिक लगे उसको ले लेते हैं, और बकिया को छोड़ देते हैं। बात कोई समझ आई है, या मजीद की जरूरत है? सर, इससे ये मुराद हुआ कि मतलब ज्यादा जो इताअत का है ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मतलब मेन चीज यही है कि जो इसको फॉलो कर रहे होंगे वो ही अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, ठीक है। जी, बिल्कुल बाकी ऐसा इसके है। अलावा जो भी ये दावा करता है कि हम लोग ये सुन्नत वल जमात वाले हैं, तो वो फिर हम उसको नहीं सही मान सकते। हम्म, ठीक समझिए आप। यानी असल चीज नाम नहीं है, असल चीज इत्तिबा है, पैरवी है।
ठीक हो गया सर, जजाकल्ला। हम पढ़ रहे थे वो मिनल ईमान बिल्लाह ही, ईमान बिल्लाह से आगे अब क्या क्या चीजें हैं, तो ये तफसील है। पहली बात, अल ईमान, ईमान रखना, बिमा, उन चीजों पर, वसफा, वस्फ बयान किया बिही उसके साथ, नफ्सहू, कुछ में लफ्ज अल्लाह भी है, वसफ अल्लाह बिही नफ्सहू, अपने आप का, फी किताबी, अपनी किताब में। क्या मतलब? उन चीजों पर ईमान जिनका अल्लाह ताला ने अपनी किताब में अपने बारे बता दिया। मेरे हाथ हैं, और मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बड़ी सिफात है अल्लाह तबारक व तआला की जो कुरान पाक में ही, आगे तफसील से आयत भी आएंगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो इसमें सारी चीजों पर ईमान रखना। अल्लाह ने कहा मेरे दो हाथ हैं, तो आदमी कहे कि नहीं तेरे दो हाथ नहीं है, ये ईमान नहीं है, ये इनकार है। तो अल्लाह ताला ने अपना तारुफ जो करवा दिया किताबुल्लाह में, उस पर ईमान। और दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का तारुफ जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवा दिया, उस पर भी ईमान। ये नहीं कि अल्लाह के तारुफ में सिर्फ हम कुरान को लेंगे और हदीस को नहीं मानेंगे, ये भी गलती है। वह बीमा, और उस पर भी ईमान, वसफहू बिही रसूलुहू, जिसके साथ मुत्तसिफ किया, उसे ठहराया, बयान किया उसका, उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो पहली बात, उस पर ईमान जो अल्लाह ताला ने अपना तारुफ खुद कुरान में करवाया। और दूसरी बात, उस पर भी ईमान कि जो अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया। इन दोनों चीजों पर ईमान रखना, ये क्या है? जरूरी है, और अल ईमान बिल्लाह में शामिल है। फिर आगे इसकी कुछ मजीद वजाहत है कि ये जो ईमान है, ये कैसे होना चाहिए? मिन गैरी, अलावा इसके। किसके अलावा? ये चंद चीजों का यहाँ पे तज़किरा है। तहरीफ, तातील, और तकयीफ, और चौथे नंबर पर तमसील। तहरीफ, तातील, तकयीफ और तमसील के बगैर, यानी अल्लाह पर ईमान हमारा दो बातें। एक बात, अल्लाह ताला ने खुद अपना जो तारुफ करवाया, उन सारी चीजों पर ईमान। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का तारुफ उसके रसूल ने करवाया, उस पर भी ईमान। ईमान कैसा? जिसमें किसी तरह की तहरीफ नहीं होनी चाहिए, तातील नहीं होनी चाहिए, तकयीफ नहीं होनी चाहिए, तमसील नहीं होनी चाहिए। ये अल्फाज हमें आने चाहिए, तहरीफ, तातील, तकयीफ, तमसील। इसको दो दो तीन तीन बार दोहराएं, क्योंकि ये इस्तिलाहात हैं, याद हो जाएंगे। तहरीफ, तातील और तकयीफ और तमसील, इसके बगैर ये ईमान होना चाहिए। अब आते हैं इसकी थोड़ी थोड़ी वजाहत की तरफ। तो तहरीफ क्या होता है? तहरीफ, इनहिराफ उर्दू में लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं, मुनहरिफ हो जाना, मतलब तब्दीली कर देना। तहरीफ का मतलब क्या होता है? तब्दीली। तो ये तब्दीली जो है, ये दो तरह की होती है। एक लफ्जी होती है, और एक मानवी तब्दीली होती है। लफ्जी तब्दीली जिस तरह के यहूद ने की, असल में काम यहूद का ही था, जो आगे हमारे मुसलमानों में भी ये चीजें धर आई, और ऐसे मुसलमान फिर दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। लफ्जी तब्दीली की कुरान में मिसाल यहूदियों के हवाले से जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह ताला ने कहा था हित्ता को, तो उन्होंने क्या कहा? हिंता। ये क्या थी इनकी? तो, ये जो हमारे यहाँ यानी अहलुस सुन्ना वल जमा के मुकाबिल जो नजरियात हैं, उसमें जहमिया और इस तरह के इन्होंने क्या कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के बारे कुरान में आता है ना, सुम्मस्तवा अलल अर्श, इस्तवा अलल अर्श। इस्तवा का मतलब होता है ऊपर चढ़ा, बुलंद हुआ। तो इन्होंने क्या कहा कि इस तवा का मतलब है इस तौला, कि अल्लाह ने गलबा पा लिया। तो इस तवा का जो लफज था, इसको इन्होंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, इस तौला कर दिया। और यहाँ एक किस्सा भी इनका पेश किया जाता है, पता नहीं क्या नाम था उसका। उसने कहा कि अगर मेरा जो है वो बस चले, तो मैं क्या करूं? कुरान से जो लफज है इस्तवा का, ये सारे का यानी ये लफज जो है मैं मिटा दूं। और हाँ, ये जहम बिन सफवान ही था। जहम बिन सफवान था जिससे ये फिरका जहमिया वजूद में आया। उसने क्या कहा? ये किताब का नाम है तौजीहुल मकासिद, उसके अंदर उसका ये कौल लिखा हुआ है।
उसके सामने पढ़ा गया अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। तो जालिम आगे से कहने लगा लव वजदतु सबीला इला अन अहुक्कहा मिनल मुसहफी लफअलतु, अगर किताब से ये इस्तवा का जो लफज है, ये मुझ में ताकत हो ना मिटाने की, तो मैं ये लफज मिटा दूं। तो ये लफ्जी तहरीफ है जो इन्होंने की है, और यह उसका इजहार किया। जाहिर है कुरान की हिफाजत का तो जिम्मा अल्लाह ने लिया है ना, बदबख्त कर नहीं पाए, लेकिन उसने अपना अंदर खाता वो पेश तो कर दिया ना, कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये इस्तौला यानी इस्तवा का जो लफज है कि अल्लाह ताला ऊपर हुआ, बुलंद हुआ, अर्श पर मुस्तवी हुआ, ये मुस्तवी का अर्श कुरान से काट दूं। ये जो तहरीफ है ये है लफ्जी तहरीफ। और मानवी तहरीफ वही जो पहले मैं जिक्र कर रहा था कि इस्तवा को इस्तौला में ले आना, इस्तवा को इस्तौला में ले आना। चलें ये बात इसी के साथ रहने दें। मानवी मिसाल हम कोई और ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह ताला के जो दो हाथ हैं वो खुले खुले हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि यदा का तर्जमा ठीक है। अच्छा आपकी जो है ना सहूलत के लिए मैं नाम ले लेता हूँ, कोई हरज नहीं। एक किताब हमारे यहाँ मारूफ है, कुरान का जो तर्जमा है उसका क्या नाम है, कंजुल ईमान। ये कई घरों के अंदर ये मौजूद होता है कंजुल ईमान। तो जिन घरों में है वो जरा अभी वो किताब सामने रखें जो कुरान का तर्जमा है, और उसमें देखें सूरतुल मुल्क की जो पहली आयत है उसका तर्जमा क्या किया गया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। तर्जमा क्या होना चाहिए, बड़ी बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में बादशाहत है। लेकिन वहां क्या लिखा हो, जिसके कब्जा कुदरत में बादशाहत है। तो ये इस तरह की यानी जो पुराने जमाने में तहरीफ होती थी, आज कल भी उसके असरात मौजूद हैं। ये लफज बोला नहीं जाता यार ये काम लिवज हिल्ला कर रहा हूं मैं, इसका मतलब लोग क्या समझते हैं, अल्लाह की रजा के लिए। भाई रजा है, लेकिन लिवज हिल्ला का जो लफज है, वजह उनका मतलब होता है चेहरा। तो मैं ये काम कर रहा हूं ताकि कल कयामत के दिन अल्लाह ताला के मुबारक चेहरे का दीदार कर सकूं, ये इसका असल मतलब। तो कुरान में और अहादीथ में कई ऐसे अल्फाज आते हैं लोग उनकी तहरीफ कर जाते हैं कि यद जो है वो कुव्वत के माना में है। जी अच्छा, इतनी अजीब बात है, कहते हैं जी यद कुव्वत के माना में है, यानी यद का जो असल माना है वो मुराद नहीं लेते। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि यद जो है हाथ, कहते हैं अल्लाह का भी है और मखलूक का भी है। तो कुरान में तो अल्लाह कहता है कि लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसा तो कोई है नहीं, लिहाजा अल्लाह का हाथ नहीं, मखलूक का हाथ तो में नजर आ रहा है। तो अल्लाह ताला के यहाँ जहां जहां लफज यद आता है उसका माना कुव्वत कर दो। अरे अकल के अंधो, ये जो कुव्वत का माना अल्लाह ताला के लिए आप कर रहे हैं यदुन का, तो क्या ये कुव्वत इंसान में नहीं पाई जाती? इसका तज़किरा किया अल्लाह ताला ने। आप कुरान करीम देख लें, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हमने इंसान को जो है वो पैदा किया मिन ज़ाफिन, कमजोरी से पैदा किया, सुम्मा जअला मिन बाद ज़ाफिन कुव्वा, फिर हमने कमजोरी के बाद इसको कुव्वत दी, फिर कुव्वत के बाद फिर इसको कमजोरी दी, बूढ़ा बना दिया। तो कुव्वत इंसान के लिए क्या है नहीं? क्या तकलीफ थी, क्या मसला था कि आप कह देते कि भाई अल्लाह का हाथ है, अल्लाह ने खुद कह दिया, वही जो हम पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह ने अपना तारुफ खुद करवा दिया। उस पर ईमान जरूरी है, अल्लाह ने कह दिया मेरा हाथ है, मानो अल्लाह का हाथ है। जी मखलूक के मुशाबे, मुशाबे क्यों होगा? क्या हाथी का हाथ अपना पाँव नहीं होता? इंसान का पाँव हाथी का पाँव एक जैसा है, चींटी का पाँव और इंसान का पाँव एक जैसा है। जबकि हाथी के पाँव पर भी पाँव का लफज बोला गया, इंसान के पाँव पर भी पाँव का लफज बोला गया, तो क्या ये दोनों पाँव एक जैसे हैं? नहीं। जब मखलूक के आपस के जो मुश्तरक अल्फाज हैं ये एक जैसे नहीं है, तो खालिक मखलूक में तो इस तरह की जो तसव्वुर है वो भी नहीं करना चाहिए। तो खामखा ऐसे लोगों ने जो है ना इस तरह की जो बातें हैं वो की हैं। अच्छा मैंने हवाला जात यहाँ कई आपके सामने रखे थे, इसको मैं मिटाता जाता हूँ ताकि और हवाला जात हमारे कुछ सामने आते जाए। अच्छा ये था, हाँ, तो ये हम्माद इब्ने ज़ईद जो है इन्होंने जहमिया की मिसाल बयान की है कि जहमियों की मिसाल एक आदमी से है कि उसे कहें कि यार तुम्हारे घर में खजूर का दरख्त है, वो कहे हाँ खजूर का दरख्त है। अच्छा उसके टहनियाँ हैं, उसके पत्ते हैं, उसकी शाखें हैं, उसका तना है, वो सब के जवाब में क्या कहता जाए कि नहीं?
तना भी नहीं है उसकी, वो शाखें भी नहीं है, उसके ऊपर फल भी नहीं है, उसकी जड़ें भी नहीं है। तो भाई तुमने अपने घर में रखा क्या है? क्या रखा है? वो कैसी खजूर है, कैसा खजूर का दरख्त है जिसका ना तना है, ना टहनियां हैं, ना शाखें हैं, ना उसके ऊपर वो फल के जो है ना वो खोशे हैं, और ना ऊपर फल लगा हुआ है, तो रखा क्या है अपने घर में? उसको कहा जाएगा कि तुम्हारे घर में खजूर का दरख्त ही नहीं है फिर। तो इसी तरह ऐसे लोग जो है, अल्लाह तबारक व तआला के बारे जब इनसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारा रब है, कहते हैं हाँ है। अच्छा वो कलाम करता है? नहीं जी, कलाम नहीं करता। अच्छा अल्लाह ताला के हाथ हैं? नहीं। अल्लाह ताला के कदम है? नहीं। अल्लाह ताला की उंगली है? नहीं। अल्लाह ताला राजी होता है, गुस्सा होता है? नहीं। तो उन्हें क्या कहा जाएगा? भाई तुम्हारा रब भी नहीं है। वो कैसा रब है जिसकी कोई सिफत ही नहीं है? ये वो जहां बिन सफवान ही था ना, बदबख्त आदमी। इससे कहा गया कि सिफ लना रब्बक, अपने रब का हमें तारुफ करवाओ। वो अपने घर में जा घुसा, 1 महीना घर के अंदर रहा और फिर बाहर निकला। ना नमाज कोई बाजमात उसने पढ़ी, ना कोई और काम किया। बाहर निकला तो निकल कर क्या कहा कि रब जो है ना, वो ना सुनता है, ना देखता है, ना कलाम करता है, वो हमारा रब है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे ये बदबख्त लोग। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जहम बिन सफवान की बार बार बात आ रही है, तो यहाँ एक और बात मैं जिक्र करके बात को खत्म करने की तरफ हम जाएं। ये जो यहूद है ना, यहूद ने अपने दीन के अंदर ये तहरीफ और इस तरह की चीजें जो है इन्होंने पैदा की थी। तो ये फिरका जहमिया जो है, ये यहूद का ही तैयार करदा है। ये किताब इस वक्त आपके सामने शरा लामिया, ये भी इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की ही है, जिनकी हम इस वक्त अल अकीदा अल वास्तिया पढ़ रहे हैं। इसमें उन्होंने सनद बयान की है इनकी। जहम है, जहम बिन सफवान। इसके बाद वासिल है, ये वासिल बिन अता है शायद, अ, बल्कि यहां से शुरू हो रही है जहम से। ये जहम है बिन सफवान। जहम बयान करते आगे जाद से। ये जाद बिन दिरहम है। वो बयान करता है आगे बयान बिन समान से। वो बयान करता है तालूत से। और ये तालूत बयान करता है लबीद बिन आसम से। और ये लबीद वो बदबख्त यहूदी है जिसने नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया था। तो ये तालूत उसका क्या है, भांजा है। तो आप देख लें कितनी इनकी सनद है, यानी जहम बिन सफवान का उस्ताद जाद है, जाद का बयान है, और बयान का तालूत और उसका लबीद। तो इनका सिलसिला कहाँ तक जा रहा है? इनका सिलसिला यहूदियों तक जा रहा है। इसलिए ऐसे के फिरक जो हैं ये बिल्कुल बातिल नजरियात हैं। तो यहाँ पहली चीज हमने पढ़ी है तहरीफ। दूसरी चीज है तातील। तातील के बगैर, तातील का मतलब होता है छोड़ा गया। जिस तरह कुरान में है वबिअरिन मुअत्तला, छोड़े हुए कुएं। तो तातील का मतलब होता है छुट्टी करवा देना, किसी चीज को खत्म कर देना। तो मुअत्तिला कौन है? जो अल्लाह ताला की किसी सिफ्त को मानते ही नहीं है। इसी तरह तकयीफ मुकय्यफा फिरका है, जो अल्लाह ताला की कैफियत बयान करता है कि जिस तरह हमारा हाथ है ना, ये कंधे के साथ लगा हुआ है, और फिर दरमियान में कोहनी आती है, और फिर नीचे गुट होता है, और उसके साथ आगे हाथ होता है। हर हाथ की 5 उंगलियां हैं। बिल्कुल ऐसे अल्लाह का हाथ है। तो ये बात भी गलत है। भाई अल्लाह ताला ने तो आपको नहीं कहा कि मेरा हाथ ऐसे का है, तो तुम कैफियत कैसे बयान कर सकते हो? इसी तरह चौथी चीज क्या है? तमसील, मिसालें देते हैं, मिसालें बयान करते हैं कि अल्लाह ताला सुनता है। हाँ सुनता है। कैसे? जैसे हम सुनते हैं। देखो ना, मैं इधर बैठा हूं, मैं कितना ताकतवर आदमी हूं। तो मैं अपने ये कुर्बो जवार बस करीब करीब की बात सुन सकता हूँ। ये तो नहीं कि मैं इधर लाहौर में बैठा हूं तो पेशावर वालों की बात मैं सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं। लिहाजा मैं ऐसा नहीं तो अल्लाह भी ऐसा नहीं। यानी अपने साथ मुशाबत देना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा ईमान अल्लाह पर होना चाहिए जो अल्लाह ने खुद अपना तारुफ बयान कर दिया, उसके नबी ने उसका तारुफ बयान कर दिया। अपने साथ उसकी मुना मुशाहबत करनी है, तकयीफ हो या तमसील हो, और इन सिफात का इनकार भी नहीं करना। और इसमें जो लफ्जी और मानवी तहरीफ है वो भी नहीं करनी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे ख्याल में हम इक्तफा करते हैं। जी जजाकुमुल्लाह खैर उस्ताद जी, ये फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी काफी है।
سر یہ جہمی فرقہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ یہودیوں کا بتا رہے ہیں یا مسلمز کا بتا رہے ہیں؟ کیونکہ یہود جہمی کی کا آپ نے طرف کہا. سے ان کو جو ہے تیار کیا گیا تھا، جیسے ہمارے ہاں یہ قادیانی فرقہ نہیں ہے، اس کو انگریزوں نے تیار کیا ہوا ہے، اسی طرح یہ جتنے فرقے تھے یہ سارے کے سارے یہود کے تیار کردہ تھے۔ جہمیہ جہم بن صفوان کے پیروکار تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات سب کا انکار کرتے تھے کہ اللہ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں۔ اور دوسرا جو معروف فرقہ ہے وہ معتزلہ کا تھا، یہ واصل بن عطا کے پیروکار تھے۔ یہ اصل میں جو واصل بن عطا تھا نا، یہ حسن بصری رحمہ اللہ جو کہ ایک معروف تابعی اور بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس بیٹھتا تھا ان کی مجلس میں۔ تو ایک بار کیا ہوا، یہ بدبخت وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، تو حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے اعتزل عن مجلسینا، اس طرح کر کے انہوں نے لفظ بولا کہ ہماری مجلس سے یہ الگ ہو گئے۔ اعتزل کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا، تو جو الگ تھلگ ہو جائے اس کو معتزلی کہتے ہیں۔ تو اس کو معتزلی کہا گیا، اور اس کے ماننے والے سارے پھر فرقہ باقاعدہ بن گیا معتزلہ۔ ان کا کہنا کیا ہے کہ اللہ کے نام تو ہیں لیکن خالی صرف وہ لفظ ہی ہیں، ان کے اندر معانی نہیں ہے۔ مثال اللہ تعالیٰ کا لفظ الرحمن، صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علیم، اللہ جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم صرف نام کو لیتے ہیں کہ اللہ علیم ہے، بس اس نام کا جو معنی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو جانتا ہے، یہ جانتا جونتا کوئی نہیں ہے۔ اور صفات کا تو ویسے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو معروف فرقہ ہے وہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء میں سے من مانی چیزوں کو لیتے ہیں، یعنی جو چیز ان کے عقیدے کے مطابق ہو اس کو لے لیتے ہیں اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسماء صفات میں سے جو چاہتے ہیں ان کو لے لیتے ہیں، اور جس اسم یا صفت کا انکار کرنا چاہے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ تین معروف فرقے ہیں، باقی اس سے آگے کئی فرق ہیں جو انہی فرقوں سے نکلے ہوئے ہیں، اور جزئیات میں ان کا تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے۔ یہ زیادہ فرقے بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تاکہ مسلمان جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے ان کا نظریہ خراب ہو جائے۔ جب نظریہ ہی خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، نہ توحید ربوبیت رہے گی نہ الوہیت رہے گی، جب اسماء و صفات کا انکار کر دیا۔ جی جزاک اللہ سر. فرقے جو ہے نا ان کا میں ایک بار نام لے لیتا ہوں، اس کو نوٹ کرنا چاہیں کر لیں، اور گوگل سے آپ ان کی ہسٹری بھی ساری پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 سبائی، نمبر 2 خوارج، نمبر 3 حروریہ، نمبر 4 ناصبہ، نمبر 5 شیعہ، نمبر 6 رافضہ، 7 قدریہ، 8 جبریہ، 9 جہمیہ، 10 مرجیہ، اور 11 معتزلہ، اور 12 مجسمہ یا کرامیہ ان کو بھی کہتے ہیں، اور 13ویں نمبر پر کرامتہ یا باطنیہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، 14ویں نمبر پر اشعریہ جن کو معروف لفظ اشاعرہ ہے، اور 15ویں نمبر پر ہے ماتوریدیہ، اور 16ویں نمبر پر ہے متکلمین جن کو اہل کلام کہا جاتا ہے، اور 17 نمبر پر ہے مفوضہ، 18ویں نمبر پر ہے فلاسفہ، 19ویں نمبر پر ہے کلابیہ، 20ویں نمبر پر ہے وعیدیہ، اور 21ویں نمبر پر ہے حلولیہ۔ یہ پرانے عقائد تھے، انہی کے نظریات آج کل جو جدید فرق ہیں ان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو سمجھ لیا جائے تو موجودہ دور کے جتنے یہ فرقے نئے سے نئے بن رہے ہیں، آدمی ان کے فرق کی اساس اور بنیاد کو انشاءاللہ سمجھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا نا تو کسی وقت یہ کتاب التوحید پڑھیں گے جو صحیح البخاری کی آخری کتاب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پھٹے وہ کھیڑ دی ہیں ایسے سارے لوگوں کے، اور خالصتاً کتاب و سنت کی جو دعوت ہے اس کا پرچار کر دیا، اور کسی ایک کا نام لیے بغیر سب کا ہی رد کر دیا۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔